What's up, all right, everyone? This is Jamil Said. Welcome back to our channel. And today we have again our guest Mehrajuddin Bhatt sir here. So, before getting started, I want to ask you, sir, how are you? Hello, it's all about Jamil and figure out with Jamil. Thank you for coming back. I guess it's a long pause of 4 months. Yeah, exactly. Yeah, so we are back. It means that there is something special that's on the money. Yeah, So we'll be exactly. discussing that. Tell audience what happened exactly previously with us. Many things happened. The video that we recorded, or so-called podcast, it has had some brilliant views, Yeah, it got a wonderful feedback, and I'll extend my thanks to all the student community who loved to watch us doing whatever the stuff we are doing, especially in the domain of education and academics. Apart from that, uh, we also do take pot shots at the politics, at economy, at at the system that we are part of. So yeah, it was wonderful. I mean, people in person told me that it was a brilliant They podcast. liked it. They enjoyed it a lot. So specifically, we're going to be talking about the Jammu and Kashmir politics after the abrogation of Article 370 or the recent government, right? Plus, we're also going to be deep dive into the education of Jammu and Kashmir. So first question would be, how do you see the political, environment of Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370? A bit of course correction here is that in legal terms, it's not any which were termed as abrogation. Uh, in the academic field, it's like written down some things in Article 370. Let's call them in the legal terms that the constitutional change that were made to the erstwhile state of Jammu and Kashmir was done by the parliament. What happened? There is a good amount of literature on that. There are views that are in support of the argument that it was to be written down. There are views that obviously hold some meat when we say that shouldn't have been abrogated, shouldn't have been written down. But to each his own. But the thing is, now this is the reality. I mean, we have walked past 5 years. Yeah, here we are talking in 25 that what happened in the time of post abrogation. So broadly, if we talk about the polity and economy and then the society of this area, politically, there are certain things that have to be taken into consideration. That's why the elections that were held last year saw a very brutal mandate to a particular party. Obviously, for reasons because they were successful in actually milking the narrative of abrogation and bringing it back with the local population sentiment. That's why people threw up a large mandate to Jammu and Kashmir National Conference. They made the government. Has it been successful enough? That's a debatable thing. But yeah, at the political level, people did now find a voice. The issues are being raised in the assembly. Apart from that, in the media circles, we also see certain amount of churn, especially when we talk of people's issues. It has become more a kind of Complexity. not complex, but I'll say it seems to be a normal place now, without a special stats. And at the economic level, I will say there are certain challenges. So, for example, earlier we used to have an economy that we are going to discuss because that's a very important facet of it. Earlier it was a different economy. Now it's a different economy. Uh, until and unless people rectify with this fact that things are different now, we can see massive unemployment. We can see with people without work, and apart from that, now the government or the elected representatives, they have been shot in the foot because they cannot do large amount of deficit financing. They cannot raise money. They cannot finance most of the projects that they used to do before 370 was written down. So that's about economy. There are many other issues because we have had a large chunk of population that are young and they seek employment. Uh, Apart from that, one more important aspect of this whole discourse is society.
At the level of society now, we can have contested arguments on what went wrong. People now think differently. Now they can challenge those who are elected. They now in the social circles talk about different things that was not a norm before 370 was there. So it's not a story of whole doom and gloom, but many positive things have happened. Is there a space to criticize what went wrong post 370? Yes. That we as citizens need to talk about. Yeah, that's a brief overview of what. So what happened exactly? This is the first time in history where a state was degraded to a union territory, right? And there was an LG governor role which we see, and some people say that LG holds more power than CM. Right, it's a debatable thing in modern politics that the Jammu and Kashmir government post the Article 370, there was this governor rule, and CM holds more power to. Sorry, the LG holds more power to CM. What's it exactly? No, that's based on wrong notion. Still, in a UT, an elected chief minister has around 50 to 70% powers. He can still enjoy the portfolio of around 30 plus departments. Apart from security, most of the things still are retained by the elected government. Depends if they have a plan to work out, if they can execute the best policies if they have in mind. As of now, it seems like it was they are still in the election mode. They have to get out of it. Saying this to a politically conscious community that most of the powers are not with the elected chief minister, it will be wrong. It can be contested. An elected chief minister has a good amount of powers, a good amount, around 70%. So most of the things are doable. But we have to separate the wheat from the chaff in the sense that you cannot confuse people with the narrative of bringing back 370 statehood and then diverting their attention to something that's more important, like daily basic needs, needs of roads, healthcare, Infrastructure. education, tourism. These are things that normally any chief minister in any state or any union territory has. That has an elected What assembly. exactly governor has power on? I mean, like Governor mostly deals with police, land, and few other things. But that any which way, what does it make difference to a I chief don't think minister? so. That's for the people's needs. What exactly people need is like infrastructure, good education, healthcare. So everything is under control of chief minister, right? That's what you're saying. It's crumbling. I mean, the government that's made, that was formed, it's crumbling because it's crumbling on its own. They raised the pitch of people's expectations. They were high on most of things, especially in an election mode. And it's not familiar to us. It happens everywhere in our country. The thing is, now they have to get back and get their act together. That I see they aren't doing. As a fellow citizen like you are, like many others are, you have to sit down, make a plan that they had earlier. Because if they could have a good research team to manage the narrative, is it pretty much tough for them to check and see what actually has to be done on the ground? So that's my point. The thing is, this government has many challenges. It came into power. They were in euphoria. Did it manage well the elections? Yes. Did it reap the benefits of the post 370 narrative? Obviously, yes. Did it erode the sentiments of the people? Yes. But now, we are past 9 months. That be it may. Government has many challenges ahead. When it comes to powers, the difference. See, LG has a police with him, but if a chief minister has to deliver on infrastructure, tell me, by what logic is it right and correct to say that he cannot deliver without police? What's so special about it? Police has really It's nothing not. to do it. See, you can see MLAs roaming on the streets now, isn't it? Yeah, exactly. So, isn't it normal for a democracy? Isn't that what
elected representatives are elected for. You can see MLAs of your constituency now coming back to people doing things on the grassroots. So it's a new narrative, it's a new normal, but we have to adjust with it. So we cannot take people for a ride, we cannot take people's mandate for granted. Whosoever elected representative is, get your act together, otherwise elections any which way are not too much far. Exactly. So basically, is there any chance of collaboration between the LG and CM? What can CM do in the LG setup of government, which can basically make a real difference? Certain things are politically motivated. See, in Kashmir, Jammu and Kashmir is not the only UT. Delhi is, Lakshadweep is, many others are. So we have elected chief ministers there. So it doesn't make difference for them to run a government. But if they have sought the mandate on infrastructure building, on daily issues, to resolve them, what makes them stop? I'm yet to understand and negotiate with it. The thing is that you have to do certain, and even chief minister is on record having said that we cannot confront the central government, or for that matter the LG administration. They have to work in tandem. They have to work in collab. So since we were talking about the LG setup of government, so after the recent government of Jammu and Kashmir, do Kashmiri people feel equally represented after the elections? See, people have thrown a clear mandate to a particular political party. Apart from that, there are also MLAs from the opposition party. In a democracy, what do we expect? Use ballot in order to empower and exercise the right to vote, because that's the festival of democracy. People, if your argument holds some ground, people consider that this is the misrepresentation. But in pure democratic terms, this is not. It may be failure on the part of the government. People expected too much from it, although there were certain political whistleblowers, like there was Sajad Ghani Lone, there were many other, who later on became MLAs. They, time and again, even in the election times, when they were campaigning, they told that, say for example, if we take an example of employment, the government promised that they will do this and that, but inevitably it was not fiscally prudent. Now they are into the system, they run the government, they seriously fail to deliver on that front. The thing is, people should realize that in a democracy, you have to understand what are the problems, what is the jurisdiction of a state assembly, especially a UT assembly, and a parliament. Parliament has the powers, absolute powers, to alter the things at the national level of any part of the country. State assembly and now a UT assembly has very limited powers in that system. They cannot get 370 back. It's not their domain. All they can do is to raise the voices democratically. But other than that, I guess it will be seriously illogical to consider that, and it will not be wise to consider that this government is going to bring back, or for that matter, any government is going to bring back 370 or statehood until parliament of the country feels so. If it was taken and written down by the parliament, they have a majority. Obviously, it's that same parliament who can restore it. The earlier you understand, the better it is. Now high horses of elections are gone. Now you settle on the ground, you introspect as electorate, as people. Expect only that much which is practical. Some things are not economically, they cannot be done. We have to actually raise awareness among the people, and see, today there are means and mediums of learning. People should learn that, especially it's for everybody. Whosoever is educated knows how to use a smartphone. Exactly. So by that, if you have not an aware citizenry, things will
actually turn out to be like this only. So one thing I have realized, our current government is only for the statehood or restoration of Article 3. What is the importance of that? It's important. State is important. With state, you can have police with you. You can have many other things. You have the whole administration under you. Okay. The problem is that, short of that, that's not a reality yet. Once that will be done, I guess my hunch is that 370 is not coming back. So, because there is a history to it, whatever has been done by the parliament hasn't been returned until this day. Oh. So, if for last 70 years, whatever has been taken in the interest of the country, that hasn't been returned. So that's debatable. We can talk on that on some other day. But the thing is here that state is important, because with state you can do you can actually enhance and add value to your policies. And also apart from that, when it comes to policy making and policy execution, it will raise the bar of a chief minister. So apart from that, I don't think it's a euphoria to call out on people on this that okay, 370 will get back. Is that possible even? No. But then you can only, in politics, you say your words must be carefully crafted in order to delude people and put them in some sort of thinking. So that's how it's done. So which political party do you think can represent Kashmir? Or for example, which leader do you think is a crafted leader who can basically represent the people of Jammu and Kashmir? So if I will take names of people, it will be another amount of contestation that will fall, that will be inevitable by this. But yeah, there are certain good people in all parties. I will not say that all parties are good, but certain good people are there. And when it comes to leadership qualities, you have tried National Conference, you have tried People's Democratic Party. The only person that you haven't tried is Sajjad Ghani Lone Saab. The thing is, because in a democracy you have to give chances to people who haven't. See, after 5 years, if you give clear mandate to Sajjad Lone, especially his party, I believe that he is dynamic leader, and he is new. He hasn't seen things as Jammu and Kashmir National Conference, and for that matter People's Democratic Party or for that matter Indian National Congress. They have all seen it. They haven't delivered. All they did was on many fronts they couldn't deliver. On many fronts they lied to the people. There is only one person who you have not tried yet as a chief minister. So my gut feeling is that in a democracy, everybody must get a fair chance. अगर वो कल को डिलीवर ना कर पाए तो उसको भी निकाल देना. अगर आप एक जूसर, समझ आता है जूसर, अगर आप एक जूसर में पीछे से एक ही किस्म का फ्रूट डालते हैं तो हमेशा जूस वही फ्रूट का निकलेगा. अगर आपको जूस डिफरेंट लेना है तो पीछे से फ्रूट्स बदल दो. सो माय पॉइंट इज, अगर आप एक बार सजाद गनी लोन साहब को चांस देते हैं, अगर वो 5 साल में नहीं कर सका कुछ, तो ऑब्वियसली अगली बार आपका चांस होगा टू क्रिटिसाइज हिम. बट गोइंग हैमर एंड टोंग्स अगेंस्ट हिम फॉर थिंग्स दैट ही हैजंट डन रिमोटली, फर्स्ट यू एक्चुअली गेव हिम ए नेम एंड देन called him out because he was from outside. अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, वेदर इट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और वेदर इट्स पीडीपी, तो ऐसा नहीं कि वो नए हैं पॉलिटिक्स में, उनका बैकग्राउंड है, वो जनरेशनल पॉलिटिक्स है उनके पास, बट हैविंग ऑल्सो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे आर सो मच टेन्योर, व्हाई दे फेल्ड? द प्रॉब्लम इज़ दैट हमारे यहाँ पे एक हिस्ट्री रही है कॉन्फ्लिक्ट की. तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा सारा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेशन जो था वो डीरेल हो गया. कॉन्फ्लिक्ट से पहले, आई मीन वंस दिस इंसर्जेंसी ब्रोक आउट, उससे पहले हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स होती थी. द थिंग इज़ दैट इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो 1947 से लेके 2019 तक both the political parties didn't manage well. Light people, they could have done immensely good. Say for example, एक मैं कल रिसर्च देख रहा था,
ग्रांट्स इन एड एक ये होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट को देती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट बजट्स, इन ऑर्डर टू सपोर्ट फाइनेंशियली, जहाँ पे गवर्नमेंट, चूँकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं स्टेट्स के पास या यूटीज़ के पास, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स इन एड देती है। मैं चेक कर रहा था 1947 से लेकर 2019 तक पता नहीं कितने हज़ार करोड़ हैं जो यहाँ आए हैं। उससे आप क्या कर सकते थे? इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते थे आप आप एक हिमालयन ब्यूटीफुल प्लेस बना सकते थे इस जगह को। इतना पैसा आया है, 1000 करोड़। 1000 करोड़ तो छोटा सा अमाउंट है, वो हर साल आता है ग्रांट्स इन एड, हजारों की करोड़ में आता है। उसके अलावा यहाँ पे बजट भी हुआ करता था, आई मीन स्टेट का अपना बजट भी, जब ये स्टेट थी तब हमारे पास यहाँ बजट भी था, तो पैसा गया कहाँ? रोड्स की हालत, इलेक्ट्रिसिटी की हालत, जो हेल्थ केयर की हालत देख के ये लग रहा है, सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना पैसा यहाँ पे आया है, इवन ग्रांट्स इन एड का ही, बजट के बिना जो स्टेट का अपना होता है, उसके बिना जितना भी ग्रांट्स इन एड आया है वो हज़ारों करोड़ में है। आप वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बना सकते थे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसी बना सकते थे। अब इट कैनॉट बी एन एक्सक्यूज कि फॉर लास्ट 30 years दिस प्लेस हैज लिव्ड थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ब्लडशेड, नो, दैट कैनॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर द गुड गवर्नेंस। बट हमारी सोसाइटीज़ में लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी के होते हैं। वी हैव टॉलरेटेड बैड रोड्स, वी हैव टॉलरेटेड bad politicians, we have tolerated bad statesmen, we have tolerated even people with different mindsets जिन्हें कुछ किया नहीं है। तो ऑन पेपर जब हम बात करते हैं, ऑन ग्राउंड जब बात करते हैं, तो इतना सारा फंड्स का मिसमैनेजमेंट जो है, इट्स ग्रॉस, इट्स ग्रॉस। तो ये सारा पैसा जो था ये लोगों का था, इन लोगों ने इसको मिसमैनेज किया। तो अगर आप बार बार वही ट्राई कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस, तो अगर आप यही रोटेट करते रहेंगे, इनको पता है कि इन लोगों के पास चॉइस नहीं है। दे ऑल्सो नो दिस, किस हद तक लोग भी जा सकते हैं, इनकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है। अब वो क्या लग रहा है, पॉलिटिशियंस ऐसे ही आते हैं इन तीन पार्टीज़ के जो यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको सब पता है, उनको ग्राउंड रिपोर्ट्स होती है अपनी, हर एक पार्टी का अपने एक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, रिसर्च विंग होता है। अब देख लो, बिजली का हाल देख लो, हेल्थ केयर का देख लो, एजुकेशन का देख लो। तो कहीं ना कहीं अब कल 5 साल के बाद, 4 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा तो लोग फिर भूल जाएंगे, क्योंकि हम सेंटिमेंटल हैं। साइमल्टेनियसली टू थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर। एक तो आप सेंटिमेंटल भी हो और दूसरा आप एक्सपेक्ट ये भी कर लो कि गुड गवर्नेंस हो। पब्लिक सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर किसी एमएलए के टेन्योर के दौरान कहीं पे रोड बना है, कहीं पे स्कूल बना है, ये उसने मिन्नत नहीं रखी है इलेक्टोरेट पे, उसका काम यही है। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो थ्रो हिम आउट। एमएलए को इनको छूटा क्या है? एमएलएज को सिर्फ एक ही चीज़ छूट गई है, वो है सिक्योरिटी, पर्क्स एंड प्रिविलेज। समझ आई बात? अब हमारे यहाँ पे तो ऐसा नॉर्मल है। अब एक नैरेटिव ये भी है जो हम कभी बात भी करते हैं कि लोग कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वाज गुड देन दिस, many things happened. ऐसा नहीं होता। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो अलग होते हैं, उनसे आप एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक नेटवर्किंग होती है, एक कनेक्शन होता है, हाँ, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनता है कि आप जाइए एमएलए साहब से मिलिए, मिनिस्टर साहब से मिलिए। तो आपका जो डे टू डे काम होता है पब्लिक डोमेन में, वो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ना ही उस तरीके की गुड इकॉनमी है, ना ही उससे गुड पॉलिटिक्स बनती है। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारी सोसाइटी का। हम इलॉजिकल एट टाइम्स एक्ट करते हैं, हम कभी रैशनली सोचते नहीं हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक एजुकेटेड लॉट है, वो सिर्फ बातें करना जानते हैं इन द कॉर्नर्स। ग्राउंड पे जाके मुझे बताओ, अगर आप सिर्फ एक, इफ़ यू आर एबल टू इवन मूव द नीडल फ्रॉम 0 to 5, इतना काफ़ी होता है। इंटेलेक्चुअल थिएट्रिक्स अलग, बातें करना बड़ी बड़ी कि ये होगा वो होगा, इसको होल से, ऐसा नहीं होता। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें प्लस माइनस करने में इट टेक्स हेल लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। अच्छा, स्टिल अगर हम देखें तो करंट गवर्नमेंट को अभी बहुत टाइम है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, बट स्टिल दे हैव 4 years।
So what steps can they take in order to rebuild the trust of Jammu and Kashmir people? It's see they have Especially the see youth. they are in the process of delivering. The problem is it's immature and premature to expect more from them at this point. But अगर ये रूलिंग पार्टी को ये इस चीज़ का ख्याल है कि नहीं अभी तो हम सिर्फ एक साल से आ रहे हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिला, दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर गुड Because गवर्नेंस. they have the experience. Opposition cannot be patient with you. That's what oppositions are all about. Criticize the current government. Not only criticize, take them on. भाई रूलिंग पार्टी में ऑपोजिशन पार्टी के अपने नेक्सस ओवरटोन्स होते हैं सरकार गिराने के इन अ डेमोक्रेसी. तो इट हैपन्स एवरीवेयर. ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है. आप बाहर भी देख सकते हैं जितनी भी डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ नया तजुर्बा है डेमोक्रेसी का, यहाँ जैसे 75 साल से हो रहा है, ऑपोजिशन का काम ही है टू टेक गवर्नमेंट ऑन. क्योंकि लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता. एज सिटीजन्स हमें पेशेंस नहीं है, वो अलग बात है. लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का असेंबली में काम क्या है? टू टॉक अबाउट इश्यूज, To raise public concern. टू रेज पब्लिक कंसर्न्स, पब्लिक इश्यूज. जितने भी जहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं लोगों को उनको हल कर, यही तो उसका काम है. एज सिटीजन्स, एज पीपल जो देखते हैं पॉलिटिक्स को, ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे पॉलिटिक्स को, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एट सर्टन डिग्री हमें थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी नहीं है. और वैसे भी इस रूलिंग पार्टी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इन हाउस इनका अपना प्रॉब्लम चल रहा है, पब्लिक परसेप्शन में कुछ और डालते हैं. अब एक और र्यूमर चल रहा है मार्केट में कि सरकार गिर रही है, नई सरकार बनेगी. आई लाफ एट इट बिकॉज ये र्यूमर ऑपोजिशन का भी हो सकता है कभी. बट एनी विच वे ठीक ही तो है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ही वही है. But still, if we talk about our current CM, so he basically had this manifesto which intrigued people of Jammu and Kashmir, but somehow they failed to deliver it. Like if we talk about jobs, education, infrastructure, तो किसी भी चीज़ में अभी तक कुछ हमें डेवलपमेंट नहीं दिख रही है. लाएगा कहाँ से? आप सी जमील साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर डे टू डे श्रिंक हो रहा है, क्योंकि नहीं है गवर्नमेंट के पास. गवर्नमेंट का रोल ही वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, जिसको आप कह रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट. व्हाट डज इट मीन? लोगों के इश्यूज इतने सामने, ये डेमोक्रेसी का एक वर्टिकल डेप्थ है. समझ आई बात? एक वर्टिकली डेमोक्रेसी डीप हो रही है. इसी को कह रहे हैं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. तो ये इस चीज़ को आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब हम कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो इन्होंने बताया, हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है, और मैं यहाँ सिर्फ सोसाइटी को प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा हूँ, देयर आर सर्टन रेजोल्यूशंस दैट आर रिटन ऑन द पेपर. उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिक्स के दरवाजे बंद कर दिए हैं. विच पार्टी इज़ डेमोक्रेटिक? मुझे एक बात बता दीजिए, फॉर द सेक ऑफ द कॉन्वर्जेशन मैं बता रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, ये है कि पार्टी के दरवाजे जब आप बंद कर रहे हैं, आप यंग एनर्जी चैनलाइज नहीं कर रहे हैं. आपके इनपुट्स जो हैं वो आप नहीं ले रहे हैं. अभी भी पार्टीज़ में वही पुराना सिस्टम चल रहा है. स्टेट्स क्यूएस लोग हैं, इनको ज़्यादा पावर चाहिए, इनको ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन चाहिए. तो सोशल लेवल पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि विच कैंडिडेट यू हैव, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो ये समझे कि नहीं मैं इस पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सर्विस डिलीवर कर रहा हूँ या कोई गुड्स एंड सर्विसेज का मसला है, मैं इसके इश्यूज हाईलाइट करता हूँ. मिन्नत नहीं रखता. लीडर को ऐसे नहीं होना चाहिए कि फिर वो आके ये बोले कि ये रोड मैंने दिया है, या मेरे बाप ने दिया है, या उसके बाप ने दिया है. डज इट वर्क लाइक दैट? इन डेमोक्रेसी आपका काम, आप इसीलिए इलेक्टेड हो. आपसे नहीं हो रहा, निकल जाओ, किसी और को आने दो. नहीं, लटके रहेंगे उधरी, क्योंकि पावर में ऐसा है, ऐसा अट्रैक्शन है कि वंस यू टेस्ट इट, इसके बाद निकलने का मन नहीं करता. बट या कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि इन्होंने हाई होप्स रखे मैनिफेस्टो में. तो वो होप्स एग्जीक्यूट करने में तो इट टेक्स, आई गेस इट विल टेक, इट्स ए मोन्यूमेंटल टास्क. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नॉट डूएबल फाइनेंशियली. हाँ, सम ऑफ इट इज़ डूएबल, जो आपके फाइनेंशियल इसमें आता है, कैपेबिलिटीज़ में आता है, लेकिन आप नहीं कर सकते उसके अलावा. अब अगर आपने किया तो आप स्टेट को इंडेट कर रहे हैं. अगर आप कर भी रहे हैं कहीं पे, सपोज आपका इनकम है 1 करोड़ रुपया या 10 करोड़ या 500 करोड़ या 10,000 करोड़ आपका इनकम है स्टेट में, आप लेकिन बजट इतना बना रहे हैं कि वो उससे 50 टाइम्स बिगर है, तो आप ये कम पैसा कहाँ से लाएंगे?
आप कहीं से तो लोन उठा लेंगे ना. So you are putting state into debt. यू आर पुटिंग स्टेट्स पीपल इनटू डेट. बाद में ये सारे, ये तो जितना आपने स्टेट को इंडेट किया है, ये तो कस्तों में बाद में जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसमें चली जाती हैं. अब मुझे बता दीजिए, वेयर डज द गवर्नेंस देन कम? ऐसा इशू होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी सोशल लेवल पे थोड़ा सा अवेयरनेस और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. पॉलिटिकल लेवल पे हमें चेंज करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक लेवल पे हमें इकोनॉमिक वो लोग रखने पड़ेंगे ऑन द टेबल जो जानते हैं इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है. ऐसे नहीं. अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें या फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट की बात करें, तो उसका फ्यूचर जो होता है, उसके यंगस्टर्स होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, यूथ होता है. तो कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स थे या यूथ थे, दे आर लूजिंग देयर माइंड्स. आई मीन लाइक ब्रेन ड्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है. तो क्या स्टेप्स ले सकती है सरकार उन टू अवॉइड दैट ब्रेन ड्रेनिंग? सी द थिंग इज़ जमील, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हमारे यूथ भी इतने अवेयर होने चाहिए रैशनली कि दे मस्ट नॉट गेट स्वेड अवे बाय द सेंटिमेंट. अगर आप पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ पे आजकल मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर सेकंड जनरेशन लर्नर्स. तो हमें सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स नहीं करनी है. ग्राउंड पे जाके देखना है कि हम कौन सा काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो जो डिलीवर हो सकता है. हमारे यहाँ पे मुझे बता दीजिए कितने सारे बीटेक लोग हैं. एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. कितने सारे मास्टर्स करके लोग हैं ह्यूमैनिटीज़ में. PhD. अब छोटा सा एक एकेडमी हम भी चला रहे हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी कम है लोगों में. इट्स नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी कम है. हम स्किल्स नहीं कर रहे हैं इनकलकेट लोगों में. हमारे यंगस्टर्स को मुझे बता दीजिए, किसी भी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप एक स्कीम रखते हैं जवानों के लिए ताकि वो कर सके. अब आप जाइए, कमिंग अगेन बैक टू दिस, यहाँ पे कितने सारे सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम्स है जो स्पेसिफिकली टारगेट करती है यूथ को. अब मुझे बता दीजिए कितने सारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं. गिने चुने आप गिन सकते हैं, हैंडफुल. तो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट्स में, इतना सारा बजट इंडस्ट्री से लेके, ईडीआई से लेके, और जेके बैंक्स या बाकी बैंक्स ने जितना भी बिजनेस फाइनेंस किया है अंडर डिफरेंट स्कीम्स, मुद्रा डैश 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 डैश. तो इशू ये है कि हमारे यहाँ पे ना ही उस टाइप का काउंसलिंग होता है कि आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे प्रूडेंटली इन्वेस्ट करना है, क्लेवरली इन्वेस्ट करना है. तो बेसिकली आपको पहले इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, देन यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर. हमारे यहाँ पे जो चीज़ें पॉलिटिकली करेक्ट है, बाकी इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली वो करेक्ट हो ना हो, हम कुछ भी उसको वायरल कर देंगे. अब ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस कौन सुनता है आजकल? द थिंग इज़, हमारे यूथ को हाई हॉर्सेस ऑफ कि यार भाई साहब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो वाल्व है, जो गेट्स हैं, वो बंद हैं. ये यूथ को आपको क्यों ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट बी ऑन द सेम पेज इफ़ यू आर इन अ पॉलिटिकल पार्टी विद योर पार्टी बॉस, विद योर पार्टी पीपल. व्हाई शुड यू बी ऑन द सेम पेज? टू अंडरस्टैंड द पीपल्स कंसर्न. नहीं लग रहा है आपका कहीं पे आप डिसएग्री कर रहे हैं किसी आइडिया के साथ, आप सामने ला के बता दीजिए कि ऐसा है. पहले तो आपने गेट्स ही बंद कर दिए हैं. बता दीजिए कहाँ से इन्फ्लक्स हो जाएगा यूथ का. अब एक सिल्वर लाइनिंग है. पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा एक्टिविज़म हो रहा है. आई मीन सिंसियर एक्टिविज़म. एक तो होता है बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, वो अलग बात है. प्रॉपरली जो एक्टिविज़म कर रहे हैं, पब्लिक जिनको पॉलिटिक्स में आना है, बहुत सारे जवान हैं, यंगस्टर्स हैं जो अगले 5 साल 10 साल में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे, और उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा. अब तो एटलीस्ट किसी भी, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे ऑपोजिशन का लीडर हो, चाहे कोई भी एमएलए हो, इसको जवानों की बात सुननी पड़ रही है. अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट. उनको पता थी कि फ़लानी जगह हमारा वोट बैंक है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो वैसे ही चलता था. बट नाउ उनको पता है कि हमें इसी यूथ के पास कल हो जाना, यही हमारे इसमें इंजीनियरिंग कर देंगे. हमारी कैंपेन में हमारे पॉलिसी जो है नीचे तक ले जाने के लिए जो एक फिल्ट्रेशन होता है जो लोगों तक पहुंच जाता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यही तो है मीडियम्स ऑफ चेंज, यही तो है मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड यही तो टारगेटेड पॉपुलेशन है जिसको आपको आगे ले जाना है. क्योंकि ये बहुत कम टाइम तक हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे जवान है स्पेशली, जिसको इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, मोस्टली जो जवान है इसमें 15-20 से लेके अराउंड 35-40 साल तक, तो ये जो सेगमेंट है इसको आपको टैप करना है. अगर आपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को टैप नहीं किया, इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं किया, तो आप एक बहुत अच्छी एनर्जी से महरूम हो जाएंगे. सो
इसको प्रॉपरली हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियंस, एमएलएज जितने भी हैं, इनको पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि ये यूथ कहीं एक तो मिसलेड ना हो और इनको प्रॉपरली एडजस्ट किया जाए उन चीज़ों में। हमारे यहाँ पे आज भी यही है, एक जिंक्स ये भी है कि भाई साहब मुलाजिम हो तो तब जाके काम निकलेगा आपका, अगर आप अदरवाइज़ कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए घर बसा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शादियाँ होती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुलाजिम हैं। जो मुलाजिम नहीं है उनकी शादियाँ बहुत कम होती हैं। तो ये एक थॉट है, इससे हमें छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। बहुत सारे लेवल पे चेंज हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, और वो भी अनकॉन्शियस वे में, इनविजिबली ग्राउंड पे चीज़ें चेंज हो रही है। आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि मेरा डीलिंग ही बच्चों के साथ है। मैं देख सकता हूँ, आई टीच फ्रॉम 10 years old kid अप टू अराउंड 30। तो इस एज बार में जितने भी लोग आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो मुझे पता है कि नहीं थिंकिंग किस लेवल की है। चेंज हो रहा है ऑन द ग्राउंड ऑनेस्टली, क्योंकि यू हैव टू गिव इट टू द सोसाइटी, जहाँ पे उन्हें, इस सोसाइटी ने बहुत कुछ सहा है। दे हैव गॉन थ्रू मैनी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, लेकिन तब जाके भी, हाँ, अवेयर नहीं हो सकती है, पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो सकती है, बट दैट्स ऑलवेज विद एनी सोसाइटी एनी वेयर इन द वर्ल्ड। कोई भी सिविलाइजेशन जो हो जहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस चीज़ को हेल करते हैं कि नहीं, नॉन वायलेंस के ज़रिए हम पॉलिटिकली स्ट्रीमलाइन करके आपका एंगर भी होगा, आपके इश्यूज भी होंगे, वो हम चाहते हैं कि ऊपर तक पहुँच जाए। अब हमारी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रही है पिछले 5-10 साल से, तो कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे एक चेंज आएगा। इसी का फिर एक्सटेंशन पॉलिटिक्स में होगा, इकोनॉमी में होगा, कल्चर में होगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के पास एक ब्लूप्रिंट प्रोग्राम या प्लान है इस यूथ को एंगेज करने का। ब्लूप्रिंट, कितने सारे यूथ इंटरेक्शंस होते हैं। मीडिया, फॉर द सेक ऑफ द मीडिया अलग बात है, उसके अलावा मुझे बताइए क्रेडिबली, सब्सटेंशियली कितने सारे लीडर्स यूथ से मिलते हैं और फिर इनको इनकरेज करते हैं एंड मीनिंगफुली इनकरेज करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन नहीं है उनके पास बेसिकली, नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है उनके पास काम करने का। यूथ को सभी बोल रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट। करना क्या है यूथ एम्पावरमेंट का, जब आपको पता नहीं है कि इनको कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई करना है। अब मुझे बता दीजिए, हमारे नॉर्थ कश्मीर का एक ये है, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का एक अच्छा सा स्कोप है। प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चरल माइंडसेट, एग्रीकल्चरल सोसाइटी का एग्रीकल्चरल माइंडसेट जो होता है, ये इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। अब ये ऑन इट्स ओन ऑर्गेनिक वे में ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर टू सर्विसेज सेक्टर। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज की चूंकि कमी है ही नहीं, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट अगर हम देखें। स्पेशली ये जो वैली है, वैली में तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्कोप है नहीं कहीं पे इंडस्ट्री सेक्टर का। अब यहाँ पे प्रॉपरली जब हम एग्रीकल्चर में ही फंस गए, तो एग्रीकल्चर को ही उस लेवल पे ले जाओ ताकि ये ऑर्गेनिक हो। विद इन सेगमेंट, विद इन एग्रीकल्चर आप ऐसी स्कीम्स ले आओ, ऐसे नए ये एक्सपेरिमेंट्स कर लो जो वर्ल्ड ओवर बहुत ही मशहूर प्रैक्टिसेस हैं। हॉर्टिकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है, आपको ये करना है, तब जाके आप फैमिली इनकम बढ़ा सकते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा आपका। उसके अलावा जब आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, आपकी सर्विसेज भी ठीक हो जाएंगी, आपका फैसिलिटी भी अच्छा होगा, आपका माइंडसेट भी, आप एक नई जनरेशन को, और जब सिंपल बात है, व्हाट एन ऑर्डिनरी पर्सन थिंक्स अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर। छोड़ दीजिए एलीट क्लास को, मैक्सिमम जो हमारे 70-80% यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग हैं या बिलो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब हैं, तो उनको क्या चाहिए? ब्रेड, बेसिक सर्वाइवल ऑन द टेबल, यही तो होता है। लेकिन इसके लिए कोई आपको एडम स्मिथ की कोई इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए समझाने के लिए। इसका पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, इसका मंथली इनकम बढ़ना चाहिए। उसके लिए आपके पास जो है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग चीज़ जो है लैंड होल्डिंग्स, उसमें आप कोई नई चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों को पुश करना पड़ेगा, और एक बार ये पुश हो गया फिर देख लीजिए, जैसे हम देखते हैं साउथ कश्मीर में पहले तो नहीं होता था बाग का ये जो एप्पल बिजनेस था, उतना ज़्यादा बूमिंग नहीं था। एक ने स्टार्ट किया, करते 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 फैल गया, और उनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है। इसीलिए उनका फिर एक्सटेंशन देख लीजिए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे कितना पड़ा है। हमारे नॉर्थ कश्मीर में देयर इज़ जस्ट वन ग्लिमर ऑफ होप, वो है कि पॉलिटिकल लीडरशिप से अगर चांस मिलता है सजाद लोन साहब को, तो वो आके, क्योंकि उनका मैंने पढ़ा था वो डॉक्यूमेंट इलेक्शंस के दौरान कि क्या करना चाहिए लोगों को, ऑल्दो उसमें थोड़ा मैसेजिंग पुअर थी,
लेकिन वो आइडिया बहुत अच्छा था। आपको वैली को डायरेक्टली आप इस पैटर्न पे नहीं ला सकते कि जो दिल्ली में मॉडल है वो चलेगा, जो हैदराबाद में मॉडल है वो चलेगा, जो बाकी सारी जगहों पे मॉडल है। हमारा अपना स्पेसिफिक मॉडल होना चाहिए गवर्नेंस का और इकोनॉमी का स्पेशली। हमारा तो वैसे भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमारा वैसे भी यूरोप के कंट्रीज़ के साथ मिलता है। तो मुझे बता दीजिए वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आप ला सकते हैं। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वहाँ पे हम एक चीज़ है, चलो इस हॉर्टिकल्चर को हमें ज़्यादा उसके बारे में पुश करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज़ जस्ट हॉन्टिंग एट अस, लुकिंग एट अस। अगले 10, 15, 20 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और रैपिडली चेंज हो रही हैं। हमारे हैबिट्स देख लीजिए, कितने सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं इधर, बता दीजिए। इसलिए मैंने बोला था हम पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं हमेशा, नो मैटर व्हाट। आपकी क्लाइमेट के बारे में नॉलेज कितनी है? ज़िल्च, ज़ीरो। रेस्ट सपियर्स में हम लैग कर रहे हैं। वही चीज़ें हैं ना, ऑर्गेनिक चीज़ें आप कर लो। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा। अब मुझे बता दीजिए, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो लोग कितना बोल रहे हैं लोगों को, वर्कशॉप्स कर रहे हैं कि ये चीज़ें ले लो, ये चीज़ें ले लो। नहीं मानता है कोई, क्योंकि इनको वैसे भी पॉलिटिकली करेक्ट रहना है। एक फार्मर को, आपको मुझे बता दीजिए भाई साहब, शाम को खाना चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश चाहिए, अच्छी स्कूलिंग हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि आप शाम को डेलिबरेटली डिस्कस करेंगे कि आज भाई साहब किस पॉलिटिकल पार्टी में क्या मुसीबत चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या मुसीबत चल रही है। तो ये भी अभी एक है, एग्जिस्टिंग फिनोमेना है। बहरहाल सी, एट द एंड ऑफ द डे हमें इस सोसाइटी में रहना है। हमें देखना पड़ेगा कि कल को व्हेन यू लुक बैक 20 ईयर्स डाउन द लाइन, 30 ईयर्स डाउन द लाइन, ऐसा ना हो कि मुझे एक आइडिया था, मैंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। सपोज मेरे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट कम्युनिटी से हैं, पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तकरीबन 5-6 हज़ार बच्चों को पढ़ाया होगा पीछे, और अच्छे स्कूल में काम किया है। तो कहीं ना कहीं उससे जो ऑडियंस मिलती है आपको, वही उन्होंने हमेशा ये कहा कि सर आप एकेडमिक्स अच्छा कर सकते हैं, एकेडमिक्स में, एजुकेशन में। तो मैं और भी कोई काम कर सकता था, मैं सरकारी नौकरी के पीछे जा सकता था कि नहीं, करनी ही करनी है। लेकिन मुझे लगा कि कुपवाड़ा में एजुकेशन में हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ही क्यों ना कर लें। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव बीन एबल टू मूव द नीडल। सिंस हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, वन क्वेश्चन विच ऑलवेज ट्रिगर्स मी इज़ दैट कि अगर हम नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, रोड्स देखें, हेल्थ केयर देखें, हर चीज़ में कश्मीर एक प्लेटो हिट कर गया, जैसे था वैसा ही है। सिंस आप देखें पिछले कितने सालों में जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी कभी कभी फेस करनी पड़ती है। तो एजुकेशन सिस्टम क्यों इतना ज़्यादा वीक हो रहा है दिन ब दिन? तो उन्हें इवन दो उनको इंटर्न्स के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, रीटेक करना पड़ता है। तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं? इवन दो ये एज यू सेड इतना बजट आ रहा था, तो कहाँ गया ये बजट? ये बता रहा हूँ, देखो बदकिस्मती से ये इलाका बहुत सारी अच्छी चीज़ों के बजाय बहुत बुरी चीज़ें हुई यहाँ पे, लोगों के साथ भी हुई, इस इलाके के साथ भी हुई। तो उससे हमारे ऊपर एक जाने अनजाने एक हमारे साथ एक लेबल है। उसकी वजह से सारा प्रोसेस डिरेल हो गया। एज ए सोसाइटी, पूरे मुल्क को जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद हर एक रीजनल सिविलाइजेशन जो है वो सर्वाइव कर गई ऑन इट्स ओन। आप ऐसा ही नहीं देखते किसी भी, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, इन सारे इलाकों में भी लोग आते हैं, बाकी सारे इलाकों को जाते हैं, लेकिन इनका तब भी रीजनल इथॉस अभी भी ज़िंदा है। हमारे यहाँ पे मिसफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम रही है, लेकिन उससे पहले सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गया, सोसाइटी के बाद फिर इकॉनमी में प्रॉब्लम हो गया, तो पॉलिटिक्स भी इसी का विक्टिम बन गया। पॉलिटिक्स में भी ये सारी चीज़ें हो गई, और फिर जब पावर कॉरिडोर्स के हाथ में सब कुछ मिला, एक ऐसा भी टाइम था यहाँ पे कि आप फ्रॉम लक्जरी मोड आप सर्वाइवल मोड में चले गए। ऐसे हालात थे यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में कौन लक्जरी चाहता था जब हालात ख़राब थे, इतने सारे हालात ख़राब थे। तो अब वो टाइम सही है, अगर आज नहीं हो रहा है तो कभी नहीं होगा। एजुकेशन में हमारे यहाँ पे पहले तो
प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिलेक्शंस हुई हैं ओवर द टाइम फॉर लास्ट 70 ईयर्स, इसने सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन में किया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिलेक्शंस, टैलेंट को इन्होंने बाहर किया, बैकडोर एंट्रीज कर ली और इतने सारे लोगों को मुलाजमत दे दी, जिनसे ना ही सिर्फ उस डिपार्टमेंट की खराबी हो गई, बल्कि हमारे फ्यूचर के साथ भी प्रॉब्लम हो गया। आज भी आप देख लीजिए कितने सारे आप जानते हैं इलाके हैं जहाँ पे आज भी टीचिंग फैकल्टी टीचिंग स्टूडेंट रेशो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारा तो दिन ब दिन बद से बदतर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। तो क्या चैलेंजेस रहे हैं पास्ट से या करंट में, या आप इंटरनेट शटडाउन देखो? सब 3 से 4 चीज़ें कर सकते हैं एजुकेशन को ठीक करने में। पहले इसकी क्वालिटी वाइज आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास प्लान क्या है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको देखना पड़ेगा क्या करना है। नंबर 3, इंटर स्कूल आपको ये जो है एग्जामिनेशंस करने पड़ेंगे अगर आपको इन्हांस करना है ग्राफ इसका। चौथी चीज़ है आपको एक पेरेंट फीडबैक लूप क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे आप सरकारी स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में है, आपको एक नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। फिफ्थ चीज़ है कि आपको इनको अलाइन करना पड़ेगा विद वॉट एवर द करंट ट्रेंड्स ऑफ द टाइम आर। तो ये 5 चीज़ें कर दो, मुझे लग रहा है कि 5 या 10 साल का अगर प्लान होगा आपके पास, 10 साल के बाद हमारा एजुकेशन फिर से अपने पैरों पे खड़ा होगा। अदरवाइज यू विल बी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री ऑफ पीपल विद मास्टर्स विद बीटेक, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जम्मू कश्मीर अपनी डेवलपमेंट को कैसे अब रीबिल्ड कर सकता है ओवरऑल डेवलपमेंट में, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर। तो इज़ इट द मेन थिंग विच द करंट गवर्नमेंट कैन प्ले अ मैसिव रोल इन दिस? करंट गवर्नमेंट के पास अभी 4 साल है, अगर ये इसमें कामयाब हो गए कुछ अच्छा डिलीवर करने में तो बी इट में, अगर नहीं हुए तो दे मस्ट क्लियर द स्पेस फॉर न्यू पीपल, फॉर यंगस्टर्स, फॉर पीपल हु हैव सम क्रेडिबिलिटी लेफ्ट इन देम, ताकि वो डिलीवर कर लें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरा लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप अगली बार वोट डालने जाए तो बी श्योर अबाउट इट कि किसका मैनिफेस्टो कितना प्रैक्टिकल है। ये हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे, हर एक घर, हर एक जगह डिस्कस होना चाहिए कि किसका मैनिफेस्टो कितना प्रैक्टिकल है, कौन कितना डिलीवर, किसी कितनी कैपेबिलिटी है, किसका कितना सॉलिड प्रूफ प्लान है इस सोसाइटी को, इस इलाके को, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का। आपके पास सबसे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था नॉर्मल जो गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस इश्यूज होते हैं डेमोक्रेसी में, वो हल करने का, लेकिन आप इसको किसके हवाले कर रहे हैं? नैरेटिव के हवाले, 370 के, स्टेटहुड के। तो मुझे एक बात बता दीजिए, हमारे यहाँ पे जो सरकार है, सिर्फ सरकार को ही स्टेटहुड चाहिए, ऑपोजिशन को नहीं चाहिए? वाई शुडंट दे हैव अ कॉन्सेंसस और एक ऑल पार्टी मीटिंग डेलीगेशन जो है वो चला जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उनको बोले कि स्टेटहुड के बिना हमारा नहीं चलेगा। आरंट देयर गुड मीन्स एंड मीडियम्स टू टॉक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? इनका तो कम्युनिकेशन हमेशा होता है। नहीं, उल्टा ये उसका कर लेंगे। ये एक्चुअली क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आएगा, फिर से पावर मोनोपोलाइज हो जाएगा, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से अगले 50 साल के लिए ये सारा सिस्टम ही डिरेल हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑनेस्टली इस समाज ने बहुत कुछ देखा है। इट्स हाई टाइम टू डिलीवर एक कॉन्सेंसस के साथ एक सारी चीज़ें, और अवे फ्रॉम ऑल द थिएट्रिक्स। आप सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स नहीं कर सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास 5 साल है, 5 साल में कर लीजिए, नहीं तो किसी और को चांस दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। अगर आप अच्छा करना चाहें यहीं से स्टार्ट होगा, अगर आप ख़राब करना चाहें यहीं से स्टार्ट होगा। देयर इज़ ऑलवेज ए ग्लिमर ऑफ होप। और मेरी पूरी उम्मीद है कि वंस लोग सोच लेंगे, अगली बार इंशाल्लाह जो सरकार होगी 4 साल के बाद, तब तक आपको बियर करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो करंट पार्टी है, दे आर द मोस्ट ट्रेट्सक्यूअस पीपल दैट आई हैव सीन। Not demeaning the people who are good in the party. There are some good faces. There are some good youngsters, capable people. They can do some good service to the people. So that's all from my side. मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा, वो है रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स ये कहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये उनके साथ इनजस्टिस है। तो क्या लगता है इस रिजर्वेशन को ठीक करने के लिए यू नीड टू हैव ए कॉन्सेंसस। मैंने जहाँ तक देखा है इसकी प्रॉब्लम्स, ये जो लोप साइडेड रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है, अब आपने ओपन मेरिट को विक्टिम बनाया है इस सारी चीज़ का, सारा फॉल आउट उन्हीं पे है।
मैं ये नहीं मानता हूँ कि इस पे बात नहीं होनी चाहिए, ये सबसे हॉट इशू है। अगर इस सरकार को कोई ले डूबेगा तो ये रिजर्वेशन का इशू है, या फॉर दैट मैटर अगर किसी भी सरकार को कोई ले डूबेगा तो ये रिजर्वेशन इशू होगा। आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरिट का इसमें ब्रॉड डे लाइट मर्डर है, आपको करना पड़ेगा। गेट अवे, जस्ट ब्रेस अप फॉर मोर कॉन्टेस्टिंग टाइम्स अहेड इन पॉलिटिक्स। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन होगा, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। इस बार लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर आपके पास प्लान नहीं है कि रिजर्वेशन का इशू कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप सिर्फ केयर करते हैं कि मेरी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी बच जाए, कोई तो ऐसा लीडर होगा जिसको जो इतना रिस्क लेगा। हाई स्टेक्स गेम है ये, इसमें हाई स्टेक्स रिटर्न्स होंगे, या तो सरकार चली जाएगी या तो सरकार कंटिन्यूसली रहेगी। सो आई होप कि इस सरकार से तो आई डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि उन्होंने एक कमेटी का भी बोला था 6 महीने में रिपोर्ट देगा, एंड दे हैवंट मूव्ड ऑन दैट एन इंच। तो इस पर डिबेट कंटिन्यू रहेगी एंड इट विल बिकम ए हॉट, इट विल स्नो बॉल एक्चुअली। इसको बहुत अच्छा स्पिन मिलेगा, और ये जो रिजर्वेशन का इशू होगा, इसको हैंडल करने के बजाय इस सरकार के पास और कोई फेस सेवर नहीं है। सो down the line, reservation is one of the important issues that's haunting at us, that needs to be resolved once for all. ये lopsided reservation जो है इसमें, और इसके लिए why shouldn't they take inputs from other states as well? बाकी सारी जगहों पे जहाँ पे रिजर्वेशन के साथ डील किया गया है, कैसे ठीक किया गया, बहुत सारे कमीशनर्स बैठे हैं इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले 70 साल से, उन्होंने कैसे इसको रैशनलाइज किया, वो इम्पॉर्टेंट है। रिजर्वेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। ये जो है ओपन मेरिट के लोग, जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट करना पड़ता है चीज़ों को, वो वैसे भी ज़िंदगी में बहुत सारे हालात से गुजर रहे होते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग जस्ट डॉक्टर्स, वी आर प्रोड्यूसिंग बैड डॉक्टर्स, बैड इंजीनियर्स, बैड टीचर्स, बैड पीपल जो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। क्वालिटी वाइज फिर हमारा ग्राफ नीचे आ जाता है। हमारे यहाँ पे इतना फ्रॉड होता है, रिजर्वेशन के लिए भी फ्रॉड करना पड़ता है लोगों को, समझ आई बात? तो आपने देखो आज तो उतना नहीं होता, बट पहले, अब इन्होंने क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया है, अब तो ऑन स्पॉट जो होती है, जो तहसीलदार है जिसके पास पावर्स हैं, वो फिर ग्राउंड से लेता है हकीकत में कि अब सच में इसको रिजर्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अदरवाइज आपने कितना सारा नहीं देखा है, ये सोसाइटी एट द इंटरेस्टिंग क्रॉस रोड्स ऑफ इट्स हिस्ट्री है। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि रिजर्वेशन का इशू या तो सरकार को ले डूबेगा या नई सरकार बना लेगा और उसको भी ले डूबेगा। Because there is a masses who they can get इसके साथ बहुत voted सारा एक from. चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो इससे इफेक्ट होता है। सो माय पॉइंट इज़, इसको बैठ के इनके पास प्लान होना चाहिए। वैसे तो है नहीं प्लान, होता तो ये बोल देते, इनके पास नहीं है। तो लेट्स सी, आगे ज़्यादा कॉन्टेस्टेशन हो रहा है, एक बार असेंबली का सेशन हो जाए तो हंगामा होगा। Right. So thank you so much guys for watching this podcast. कुछ बातें और भी थे जिस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे. So if you have any questions you can let us know, we can talk about that as well.